اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام، آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ پر اپنی سلامتی رکھے، آپ ہمیشہ خداوند کے فضل میں محفوظ رہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج اس جگہ پر ہم پھر خدا کا کلام سننے کو ہے۔ وہ آج بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی خبر بیٹھے ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے، اور میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتا ہوں خدا آپ پر ہمیشہ فضل رکھے اور آپ اسی طرح خدا سے محبت رکھتے رہے تاکہ خدا کا فضل آپ سبوں پر بنا رہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم عید قیامت المسیح جو ہمارا یسوع ناصری جو ہے، جو اپنے کہے کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا ہے، اور ہم آج اس عید کو منا رہے ہیں، آج اس جشن کو، آج اس شادمانی کو، آج اس رہائی کو، آج اس نجات کو، آج اس بحالی کو، آج اس فضل کو، آج اس ریوائول کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ خدا کی شکر گزاری ہے، فضل ہے خدا کا کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو صبح بھی آئے تھے خدا کے گھر میں، جو صبح بھی آئے تھے؟ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ لوگوں نے دوہری برکت جو ہے وہ لی ہے، اور جو کہ ساتھ میں جو کہ دوہری برکت ہے وہ خدا آپ پر فضل کرے گا، آپ فضل میں محفوظ رہیں گے۔ آئیں کلام خدا کی طرف چلتے ہیں، کلام خدا میں سے مل کر سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ کلام خدا میں سے مرکز رسول کی انجیل ہے، بزرگ مرکز رسول کی انجیل ہے، انجیلی بیان ہے، اور اس کا 16واں باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر ہم اس کی 17ویں آیت تک کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ کلام خدا میں سے اس کا 16واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی 7ویں آیت تک کلام خدا کو تلاوت کریں گے۔ مرکز رسول کی انجیل ہے، اور یہ انجیلی بیان ہے، اس کا 16واں باب ہے، اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہے کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ بیٹیوں میں سے کوئی بھی اس حوالے کو ہم سبوں کے لیے تلاوت کرے تاکہ ہم سبوں کی رہنمائی ہو سکے۔ کلام خدا میں سے 16واں باب ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک کلام خدا کو تلاوت کریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی نہ بیٹا یہاں سے نہیں، 16واں باب ہے اور پہلی آیت سے پڑھنا بیٹا۔ جب سبت کا دن گزرا گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لے تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں، اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ آمین آمین۔ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا، کلام خدا میں سے میں آپ کے سامنے 6 اور 7ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ آمین۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، مرکز رسول کی انجیل ہے، یہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ صبح سویرے نکلی ہے
اور صبح سویرے نکلی ہے تاکہ قبر پر جائیں اور خوشبودار چیزیں لے کر جائیں اور اس کو اس لاش پر ملا جائے، اس کو اس لاش پر لگایا جائے، اور رستے میں پریشان ہے، رستے میں پریشان ہے۔ کام کر دیں، والیوم تھوڑا سا تیز کر دیں کہ قبر پر اتنا بھاری پتھر پڑا ہے، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اس پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا، ہم کیسے اندر جائیں گی، کیسے وہ چیزیں جا کر ملے گی، کیونکہ اس پر رومی حکومت نے اس پتھر کو سیل کر دیا ہے، اس پتھر پر انہوں نے سیل کر کے اپنی مہر لگا کر اور وہاں پر انہوں نے پہرے داروں کو بٹھایا ہے تاکہ یسوع قبر سے باہر نہ آ سکے، تاکہ یسوع قبر سے باہر نہ آ سکے۔ اور یہاں پر جب ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی اور وہ بڑی حیران ہوئی، اور ان کو فرشتہ کہتا ہے اب حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بات حیران ہونے کی نہیں ہے، جسے تم ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر بھی نہیں ہے، یسوع مسیح قبر کے اندر بھی نہیں ہے، یسوع مسیح صلیب پر بھی نہیں ہے اور قبر کے اندر بھی نہیں ہے، پھر یسوع کہاں پر ہے؟ پھر یسوع کہاں پر ہے؟ لوگ ڈھونڈتے ہیں، یسوع کے متلاشی ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور قبر کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، قبر کی طرف رواں دوا ہے، قبر پر انہوں نے نگاہیں لگائے رکھی ہیں تاکہ آج یسوع کو دیکھیں، یسوع کو جا کر خوشبودار چیزیں اس کے بدن پر ملی جائیں تاکہ اس کے لاش کو ہم دیکھیں، اور یہ پتھر ہمارے لیے کون لڑکائے گا؟ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اگر یسوع صلیب پر نہیں ہے اور یسوع قبر کے اندر بھی نہیں ہے، نہ وہ صلیب پر ہے نہ وہ قبر کے اندر ہے، تو پھر یسوع کہاں پر ہے؟ پھر یسوع کہاں پر ہے؟ صلیب پر وہ ہے نہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مر گیا، انہوں نے اس کو وہاں سے اتارا اور قبر کے اندر رکھ دیا، وہ قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھ کر آئے تھے۔ صلیب اس لیے خالی ہے کیونکہ اس کو اتار لیا گیا تھا۔ قبر کس لیے خالی ہے؟ قبر میں سے کس نے اس کو نکال لیا ہے، اور قبر سے یسوع نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے؟ آج یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، یسوع نہ صلیب پر ہے اور نہ قبر کے اندر ہے، یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع کہاں پر ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے یسوع کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے یسوع؟ کسی کو نہیں پتا یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع کہاں پر ہے؟ اور یہ آج بڑی خاص بات ہے، لوگ آج بھی لوگوں نے قبروں کی طرف رخ کیا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، اب کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ قبر کے اندر اداسی ہے، ناامیدی ہے، مایوسی ہے، وراثت ہے، گناہ ہے، اور قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں میرے یسوع کی ذات میں نہیں تھی، وہ اس لیے قبر کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ قبر کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ پھر وہ کہاں پر ہے؟ صلیب کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صلیب پر نہیں ہے، اس لیے اس کو اتار لیا گیا تھا، قبر کے اندر رکھا گیا تھا، پر قبر کے اندر سے اسے جلایا کس نے ہے؟ اٹھایا کس نے ہے؟ اور یہ بڑی خاص بات ہے، آپ کبھی بھی اس بات کو بھول کر یہ غلطی مت کرنا یسوع قبر میں نہیں ہے، قبروں کی طرف رخ مت کرنا، یسوع قبر کے اندر نہیں ہے، آج بھی اس کی قبر خالی ہے، صلیب بھی خالی ہے، قبر بھی خالی ہے، اور کھلی قبر جو ہے یہ زندگی کا پیغام دے رہی ہے، اور جو بند قبریں
है। अब खाली कब्र जो है वो शादमानी का पैगाम दे रही है। दुनिया के माबूद मट्टी के नीचे है, मट्टी के नीचे है। मौत एक ऐसा पहलवान है जिसने सबके घुटनों को टिका दिया था, जिसने सबको अपनी आगोश में ले लिया था। मौत ने सबको अपना लुकमा बना लिया था और मौत के शिकंजे के अंदर हर कोई आ चुका था, उसको अपने अंदर रख ना सकी, क्योंकि कब्र के अंदर मौत है और यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो जिंदगी है और जिंदगी कभी कब्र के अंदर रह नहीं सकती है। फिर यीशु कहां पर है? ये सवाल बड़ा खास है कि यीशु कहां पर है। मेरे साथ निकालिए ताकि हम जल्दी जल्दी इन हवाला जात को पढ़े। उसका 20 बाब और उसकी 14वीं आयत जरा मेरे साथ निकाले। कलाम खुदा में से 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और यहाँ पर भी मरियम जो है वो रो रही है कब्र की तरफ देखकर। सारे मुड़ गए हैं लेकिन वो कब्र की तरफ देख रही है और आंसू बहा रही है और वो रो रही है कब्र को देखकर कि कब्र खाली है, मेरे खुदावंद को कौन ले गया है और मेरे मालिक को कौन उठा कर ले गया है। और मुझे बताओ मेरा मालिक कहाँ है, मेरा खुदा कहाँ है, मेरा आका कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ पर है। वो रो रही है, आंसू बहा रही है। और 14वीं आयत में पता क्या लिखा है? ये कहकर वो पीछे फिरी, ये कहकर वो पीछे मुड़ी। पहले कब्र की तरफ रो रही है, फिर जो ही उसकी कानों में एक आवाज पड़ी तो वो यूं पीछे मुड़ी और लिखा है कि पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा। जब उसने अपना रुख तब्दील किया तो उसको यीशु नजर आ गया। पहले वो कब्र के अंदर है, देख रही है, कब्र को देख रही है। कब्र के अंदर मेरा मालिक नहीं है, मेरा खुदावंद नहीं है, मेरा आका नहीं है, मेरा बचाने वाला, मेरा निजात दहिंदा, मैं तो उसे यहाँ पर छोड़ कर गई थी, वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ पर है? आज भी लोग खुदा को कब्रों के अंदर तलाश कर रहे हैं। आज भी लोगों ने कब्रों की तरफ रुख किया है, कब्रों पर जाकर आंसू बहाते हैं, कब्रों पर जाकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं और कब्रों पर मातम करना खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर आप कब्रों से रुख मोड़कर पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो आपको यीशु नजर आएगा, तो आपकी मुलाकात यीशु से हो सकती है। जितनी देर तक आपका मुंह कब्र की तरफ रहेगा आप यीशु को नहीं ले सकते, क्योंकि वो कब्र के अंदर है नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पर ईमान तो रखते हैं और कब्रों पर भी, कब्रों की भी प्रस्तिश करते हैं, कब्रों को पूजते हैं। दुनिया के बहुत सारे माबूद हैं, गल सड़ गए हैं उनके बदन, उनके बदन सड़ गए हैं। जो अपने आप को खुदा कहते थे आज वो भी जमीन के नीचे हैं, आज वो भी मट्टी के नीचे हैं। फराउन जैसा ऐसा सख्त करख्त बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता है, और ऐसे हिटलर जैसे बंदे आए, ऐसे बहुत सारे सिकंदर आजम आए, लेकिन आज सब के सब जमीन के नीचे हैं, मट्टी के नीचे हैं। और याद रखें आपका और मेरा खुदा में जमीन के नीचे नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर इतनी शक्कत नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो उसको अपने अंदर रोक सकती, समा सकती। उसने कब्र के सीने को फाड़ कर वो बाहर खड़ा है। आप अभी भी कब्रों की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आप अभी भी कब्रों के अंदर तलाश कर रहे हैं। वो कब्र के अंदर नहीं है बल्कि आपके पीछे खड़ा है। आपको रास्ता तब्दील करने की जरूरत है, आपको रुख बदलने की जरूरत है। आप किस यीशु को ढूंढ रही है, आप किस यीशु को ढूंढ रहे हैं? वो यीशु तो आज से 2022 साल पहले कब्र से जिंदा आसमान पर मेरा और आपका फिदिया देकर वो काम जो बाप ने उसके सपुर्द किया था करके वो कब्र से बाहर है।
मेरा और आपका यीशु कब्र के अंदर नहीं है। कब्र के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ पर है? कहाँ पर है यीशु? आए एक और हवाला देखते हैं। आए मेरे साथ निकालें कलामी खुदा में से लूका रसूल की इंजील निकालें। जल्दी जल्दी लूका रसूल की इंजील निकालें। और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। और यहाँ पर अमावस की राह पर दो शख्स चल रहे हैं। अमावस की राह पर दो शख्स जा रहे हैं। और लूका रसूल की इंजील है, उसका 24वां बाप है कलामी खुदा में से, उसका 24वां बाप है, उसकी 15वीं आयत है। जब हम तलावत करते लिखा, जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। अब दो शख्स अमावस की राह पर जा रहे हैं। यह शहर कम से कम 6 या 7 किलोमीटर यरूशलेम से दूर है। और वो शख्स गुफ्तगू कर रहे हैं उसी माजरे के बारे में जो आज से पहले माजरा 3 दिन पहले हो चुका है। उस माजरे के बारे में बात कर रहे। भाई तू जानता है उस यीशु के बारे में? भाई तू जानता है उस यीशु के बारे में जिसने सलीब पर अपनी जान दी थी, जिसने दावा किया था कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा? क्या भाई तू उसके बारे में जानता है? वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और यीशु साथ खड़ा है। यीशु कब्र के अंदर नहीं है। यीशु हमारा हम सफर बना हुआ है। हमें इस बात का इल्म नहीं है। यीशु कब्र के अंदर नहीं है। यीशु हमारा रास्ते में हम सफर है, तो हमारे साथ साथ चल रहा है। उसने साथ चलने का वादा किया है। कब्र का पत्थर हट गया और अंदर से उन्होंने जो भी उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी, मूवी बनाई थी, कब्र के अंदर से यीशु निकला है और वो जिंदा होकर बाहर आया। उन्होंने शादमानी मनाना शुरू कर दी। लेकिन फिर उन्होंने निगाहें कब्र पर ही रखी है। कब्र हमारी मंजिल नहीं है। कब्र हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि कब्र के सफर से हमारा नजात का सिलसिला शुरू होता है। वहीं से रास्ता शुरू होता है। अमावस की राह पर चल रहे हैं। याद रखें, बहुत सारे लोग जब कोई मर जाता है, जब कोई माँ बाप बहन भाई दोस्त अजीज मर जाते हैं तो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हाँ, मुझे आज मेरी अम्मी मिली थी, आज मेरा अब्बा मुझे मिला था, आज फला हुआ था, आज फला उसने मुझे ये दे दिया, मैंने उसको ये दे दिया, उसने ये खा लिया, मैंने उसको ये दे दिया। याद रखिए, हमारा यीशु ख्वाबों में नहीं मिलता बल्कि हकीकत में साथ चलता है। वो हकीकत में साथ चलता है। आपके माँ, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके अजीज आपको ख्वाबों में मिल सकते हैं, आपको तसल्ली दे सकते हैं। जो ही आपकी आंख खुलेगी आप कोई उनको पास नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मर चुके हैं और जिसने वादा किया है वो जिंदा है और वो राह में साथ साथ चल रहा है। और हम रास्ते में जा रहे, हमारा रास्ता कठिन है, बीमारी वाला है, पुस्ता है और बुरा हाल है, जैसे भी रास्ते हैं, हमारा यीशु हमारे साथ साथ चल रहा है। यीशु कब्र में नहीं है, वो हमारा हम सफर है। वो कब्र में नहीं है, वो कहां पर है? यीशु कहां पर है? यीशु कहां पर है? हमारे साथ है, हमारे साथ साथ रास्तों पर चल रहे हैं। हम अभी भी कब्रों की तरफ मत निगाहें लगाएं। एक और हम हवाला देखेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 20वां बाब है। यहां पर भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। और यहां पर भी शागिर्द जो है छुप गए हैं कमरे के अंदर, डर के मारे, खौफ के मारे। अब आका नहीं रहा है, अब मालिक नहीं रहा है, अब मालिक नहीं है। अब क्या करेंगे? रोमियों के डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, अंदर बैठे हैं और रो रहे हैं, गमज़दा है, दुख के अंदर है, परेशान है कि अब ये क्या होगा, अब ये रोमी हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन तुम्हारी सलामती हो,
याद रखे, ना तो यीशु कब्र पर है, ना यीशु सलीब पर है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा हम सफर है, वो हमारे खानदान के अंदर आकर हमसे सलामती की बातें करना चाहता है, वो हमें सलामती सलामती देना चाहता है, क्योंकि उसका नाम है अजीम मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप, सुना और सलामती का शहजादा है। वो जी उठा है और जी उठने के बाद घरों के अंदर आकर आपके खानदान के साथ मिलकर आप अंदर खौफजदा है, दुख के अंदर है, परेशान है, खौफजदा है, लेकिन वो तुम्हारे घर में आकर कहता है तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। यीशु कब्र के अंदर नहीं है, वो जी उठा है और जिंदा है और अब्दल अबाद जिंदा रहेगा। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उसने ये वादा किया है और वो अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है, वो अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है। वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले, अपना इरादा बदल ले। अगर उसने आपके साथ रहने का वादा किया है तो फिर वो कब्र में कैसे रह सकता है? उसने आपके साथ वादा किया है, उसने आपको तसल्ली दिलाई है, उसने आपको इत्मीनान दिलाया है। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। वो हमारे दिल को मजबूत करने के लिए, वो हमारे अंदर से खौफ को खत्म करने के लिए, वो हमारे अंदर से डर को खत्म करने के लिए, वो हमारे अंदर जो मौत का डर है उसको खत्म करने के लिए कहता है कि देखो मैंने मौत को शिकस्त दी है, तुम्हारी सलामती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने वादा किया है। इंसान वादा करके भूल जाता है, लेकिन वो नहीं भूलता। वो अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है, जागता है, और उसने उस कलाम को पूरा किया। एक एक शहादत को, एक एक उन बातों को, नबूवतों को, प्रोफेसियों को जितनी खुदा के बंदों ने की, और वो इस बात का ऐलान करता है आई एम द रेजरेक्शन, मैं कयामत हूं, मैं कयामत हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, मैं वो रोटी हूं। अगर जिंदा रहने की उसने उम्मीद दिलाई है तो फिर कब्र में कैसे रह सकता है? फिर कब्र उसे कैसे रख सकती है? कब्र में इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो यीशु को रख सके। और याद रखें, और यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं, कब्र की उनको भी अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है, उनको भी रखने की जरूरत नहीं है। यीशु अगर सलीब पर नहीं है, कब्र के अंदर नहीं है, तो फिर यीशु कहां पर है? कहां पर है यीशु? उसने पूरा किया है, और ये वादा उसने कहीं छुपकर नहीं बल्कि सरेआम ये वादा पूरा हुआ है। उसने कहा, उसने कहा अगरबा बादशाह तू मेरी बात सुन, ये जो माजरा हुआ है कि मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये किसी कोने में नहीं हुआ है, ये छुपकर नहीं हुआ है, बल्कि एक चट्टान पर सरेआम खुलेआम ये ऐलान हुआ है कि मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जी उठा है। और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, आप 2 या 3 से ज्यादा हैं, तो फिर यीशु कब्र के अंदर है कि यहां पर है? कहां पर है? यीशु यहां पर है। यीशु कब्र के अंदर नहीं है, यीशु सलीब पर भी नहीं है। ये चीजें, इसके मायने ये नहीं है कि आप कब्र और सलीब को जुटला दें। ये वो हकीकत है जो बदल नहीं सकती है। ये हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है,
ये कोई कहानी नहीं है, कोई किसी तरह की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, ये बदल नहीं सकती है। एक शख्स था, बैरिया था, तो बड़ा ज्यादा नॉलेज रखने वाला था, और उसका नाम यश था। तो मैं उसकी एक बुक में जब मतलब पढ़ रहा था, तो ऐसा हुआ कि जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया, तो उसका एक शागिर्द था, उसने कहा उस्ताद तेरे पास इतना नॉलेज है, इतनी जुबानें जानता है, इतना कुछ तो जानता है, तू अपने मंतक से, फिलॉसफी से, अपने इल्म से, अपने ये सब कुछ करने से तू इस बाइबल को झूठा क्यों नहीं कर देता? तू इसे झूठा क्यों नहीं करता? तूने बहुत सारे मज़ाहिब को झूठा कर दिया, लेकिन इसको क्यों नहीं करता? इसको भी कर। उसने कहा बेटा मेरी बात सुन, मेरे पास इल्म है, मैं जुबानें जानता हूं, मेरे पास बहुत सारे अलूम है, मैं जानता हूं, और मैं हर तरीका से हर जुबान को समझता हूं, लेकिन याद रख इस किताब के अंदर जिस क़यामत का जिक्र है, मैं उस क़यामत को झुठला नहीं सकता हूं। और ये दुनिया की कोई भी हिस्ट्री, कोई ताकत, कोई मज़ाहिब, कोई सूरमा, कोई मंसूब, कोई माबूद इसे हकीकत को झुठला नहीं सका है। दुनिया ने स्टॉप करने की कोशिश की है, दुनिया ने इसको मारने की कोशिश की है, उन्होंने एक ही में सो चुके हैं, वो जी उठेंगे, उन पर मौत का इख्तियार नहीं है। फिर हम जो जिंदा हैं, बाकी हैं, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। जब उसने उन वादों को झूठा पड़ने नहीं दिया, उन वादों को मिटने नहीं दिया, उन बातों को खत्म होने नहीं दिया, तो इस वादे को भी वो पूरा करेगा, इस वादे को भी पूरा करेगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो ईमान लाएगा, यीशु मेरे अजीजों, यीशु सलीब पर नहीं है, यीशु कब्र के अंदर नहीं है। कब्रों के चक्कर लगाना छोड़ दे, कब्रों की तरफ रुख करना छोड़ दे। खुली कब्र आपको मैसेज दे रही है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। कब्र आपको मैसेज दे रही है, कब्र आपको पैगाम दे रही है। वो पत्थर जो आगे रखा गया था, और उस पत्थर पर फरिश्ता अपने पैर रखकर बैठ कर कह रहा है जिसको तुम ढूंढती हो वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, वो अपने कलाम के मुताबिक तुम्हारे दरमियान में है। उसने वादा किया था कि मैं जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए शादमानी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरा और आपका यीशु मुर्दा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कई मुर्दों को जिंदा किया। उसने अपने जिंदा होने से पहले बेवा के बेटे को, लाजर को, और एक उसने लड़की को, याईर की बेटी को जिंदा किया। उसने उनको जिंदा किया, लेकिन वो फिर मर गए, फिर चले गए, क्योंकि उनके बदन जलाली नहीं थे। उनके बदन जलाली, हम खिड़की से देखते हैं कौन है। अगर कोई रोमी है, कोई और है, तो जल्दी जल्दी से दरवाजा ना खोलिएगा, कहीं कोई घर में नहीं है। हम खौफजदा हैं क्योंकि हमारा आका नहीं है, वो हमारे साथ था, वो सबको जवाब देता था, वो सबके मुंह तोड़ देता था, सबको जो हम में इतनी शक्कत नहीं है, हमें इतनी कुव्वत नहीं है कि हम किस को जवाब दें। तो यीशु ने दरवाजा नॉक नहीं किया, बल्कि बंद है, और दीवार के अंदर सीन के अंदर गया, उनको कहा तुम्हारी सलामती हो। उसको बाहर आने के लिए कब्र से पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी। और बाइबल के अंदर जब पढ़े तो लिखा है कफन इधर पड़ा है, रुमाल इधर पड़ा है, पत्थर जो कब्र के आगे था वो इधर पड़ा है। ऐसा लगता है कि जब जिंदा हुआ तो चीजों को अपने
मार मूर के बखेर बखूर के इधर उधर और मौत का भरमला तमाशा बना दिया। और वो कयामत मौत को निकल गई, उसने मौत को अपने अंदर निकल लिया। अब मौत को खुद मौत आ गई है, अब मौत को खुद मौत आ गई है, क्योंकि कयामत आ चुकी है। और वो कयामत कब्र के अंदर आई और कब्र के अंदर से मौत निकल गई। और जिंदगी आज भी वो पैगाम दे रही है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जगह मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही वो सब कुछ हूँ। और याद रखें, अगर सब कुछ हमारा खुदा है तो फिर हम उसे इधर उधर क्यों ढूंढते हैं? वो तो आपके घर में बैठा हुआ है, वो तो आपके साथ जब आप चलते हैं आपके साथ साथ चलता है, जब आप खाना खाना बैठते हैं आपके साथ बैठते हैं, जब आप जिस जगह पर जाते हैं वो आपके साथ जाता है। अगर आपकी 50 साल उम्र है, आपने कितने ईस्टर मनाए हैं? 50 ईस्टर मना लिए हैं। अगर 30 साल है, 70 साल है, कितने ईस्टर मना लिए हैं? लेकिन याद रखें, ईस्टर ये मनाने की बात नहीं है कि हम उस कब्र को देखें और रोएं, बल्कि अब कब्र पर हंसने की बात है, क्योंकि मेरा यीशु वहां पर है ही नहीं है। उसने कहा, कब्र तू तो रख नहीं सकी मेरे यीशु को, 3 दिन तक नहीं उसे रख सकी, उसे रोक नहीं सकी, उसके बदन को गलने सड़ने की नौबत नहीं आने दी। और जिसने उसे भेजा था उसी उसको चला लिया है मुर्दों में से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा और आपका यीशु ना तो सलीब पर है और ना कब्र में है। मेरा यीशु कहाँ पर है? कहाँ पर है? हमारे साथ है। वो हमारा हमसफर है और वो हमारे घर के अंदर है। और उसने कहा, जा 2 या 3 मेरे नाम से मैं वहां पर हूं। उसने अपने वादे को पूरा कर दिया है और वो अपने वादों को पूरा कर रहा है। अब हमने अपना वादा पूरा करना है, हमने अपना वादा पूरा करना है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? उसने कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, बिशारत दो, बताओ कि यीशु जी उठा है, बताओ कि क़यामत जी उठी है।